Hello guys, welcome again. This is the video part 6 for the basic civil engineering, and in the last part we have done the classification of the building, and in this video we are going to discuss about the site selection for building और the principle of site selection. जो भी बिल्डिंग का जो साइट है या फिर जो लोकेशन है उसका जहाँ पर हम बिल्डिंग डिज़ाइन करेंगे, so what are the principles, what are the factors we should consider in our mind before taking that location or finalizing that location for a particular building. जैसे कि अगर बात करें हम इंडस्ट्रियल बिल्डिंग की या फिर स्टोरेज बिल्डिंग और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, तो उसमें क्या है कि हमें पहले ये देखना पड़ेगा एरिया कि ये वहाँ के जो साइट है लोकेशन के हिसाब से और हमारे वर्क के हिसाब से सूटेबल है कि नहीं है. So there are so many factors we need to consider for designing a building and selecting the location. Okay, so let's start from this line. Site selection has an important bearing on planning and designing of building. Generally, therefore, an architect has either to make a choice of suitable site or to plan his building structure to suit the available site. Natural defects of site will involve considerable expenditure on construction and maintenance of building, while unsatisfactory condition in the neighborhood of a locality will cause unhappy living condition on one hand and a possible deterioration of the value of property on the other. So अगर हम अच्छे से साइट सिलेक्शन करेंगे तो जो बाद में हमारे जो एक्सपेंडिचर होने वाले वो भी कम होंगे और it will feel good to design that. Okay, so the following general principles or factors should be borne well in mind in the selection of site. ये following some principles हैं हमें हमारे माइंड में रखने चाहिए. उसके बाद इस वाले टॉपिक के बाद में हम देखेंगे कि जो साइट सिलेक्शन करते हैं हम उसके कुछ क्या प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए. Okay, the site should be selected keeping in view the general scope or the purpose of the building and on the basis of extent of privacy desired. The second one, the site should be situated in locality which is already fully developed or which is fast developing. सभी जानते हैं कि जहाँ पर fast developing हो, पहले से developed हो, वहाँ पर हमें रहना चाहिए. To secure happy living condition, generally such a neighborhood is preferred where the neighbors belong to an equal status in society and who should be social and friendly. और रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए बता रहे हैं ये कि किस सोसाइटी में लेना चाहिए हमें अच्छी वाली में. The plot should be in locality where the various facilities like community services and as a police and fire protection, clearing of waste and street cleaning, अच्छे से ड्रेनेज सिस्टम हो, कम्युनिटी सर्विसेज हो, स्कूल्स हो आसपास, इलेक्ट्रिसिटी हो, वाटर सप्लाई हो, तो ये सारे लोकेशन हमें देखनी चाहिए. A site which comes within the limits of an area where the bylaws of the local authority enforce restriction regarding proportions of plots to be built up, vacant spaces to be left in front and sides, heights of building etc. should be preferred. अब देखो ये वही बात है जहाँ हमने बायलॉज डिस्कस करे थे कि हमें फ्रंट में साइड में जगह छोड़नी चाहिए, जहाँ पर प्रोपोर्शंस रेस्ट्रिक्शंस हो वो हमें कंसिडर करने चाहिए. जो भी साइट चूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर होना चाहिए, कोई मतलब इरेगुलर नहीं होना चाहिए, शेप में शार्प कॉर्नर्स नहीं होने चाहिए. द नेक्स्ट वन इज़ द साइट शुड बी सिचुएटेड ऑन द एलिवेटेड प्लेस एंड ऑल्सो लेवल्ड विद द यूनिफॉर्म स्लोप्स फ्रॉम वन टू अनदर. मतलब जहाँ पर डाउन एरिया है वहाँ पर हमें चूज़ नहीं करना चाहिए, थोड़ा एलिवेटेड एरिया में चूज़ करना चाहिए ताकि जब रेन वाटर हो या फिर समथिंग फ्लड का कोई प्रॉब्लम हो तो जो ड्रेनेज है अच्छे से हो सके. द सोइल सरफेस ऑफ द साइट शुड बी गुड इनफ टू प्रोवाइड इकोनॉमिकल फाउंडेशन. सोइल भी देखनी पड़ती है कि जो हमारी फाउंडेशन है, अगर फाउंडेशन में काफ़ी सारा खर्चा हो जाएगा तो फिर हमारी बिल्डिंग में क्या लगाएंगे हम. ओके, नेक्स्ट वन, द सिचुएशन ऑफ द साइट शुड बी सच एज टू एंश्योर अनऑब्स्ट्रक्ट नेचुरल लाइट एंड एयर. वही बात है, हमारे पास नेचुरल लाइट एंड एयर ब्लॉक वाला एरिया नहीं होना चाहिए. The site should be available in a locality where natural beauty and man-made environments create healthy living and working condition. Just like बात करें
अभी नॉर्मल एरियाज़ में तो कि जैसे पार्क के पास ले लेते हैं, पार्क एरियाज़ हो, पर जैसे आप देखते हो कि सी व्यू है या फिर काफ़ी शांत एरिया है, पीसफुल है, तो वहाँ पर थोड़ा अच्छा रहता है। इसी तरीके से कुछ और पॉइंट्स हैं कि बिसाइड्स दिस फैक्टर्स द लीगल एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स भी हमें देखना चाहिए। अ साइट शुड बी अबेंडेड अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस सच एज अनहेल्दी, नॉइजी, क्राउडेड लोकेलिटीज़। क्राउडेड नहीं होना चाहिए, नॉइजी नहीं हो, फैक्ट्री चल रही है आसपास, बहुत साउंड आता है, या फिर कुछ ऐसे ले ली जहाँ पर हमेशा नॉइज़ रहती है, तो इस तरीके का हमें एरिया का ध्यान रखना चाहिए। ओके, अब देखो साइट प्लान। साइट प्लान जो है, द साइट प्लान और अ प्लॉट प्लान, जो हमारा पर्टिकुलर जो प्लान होने वाला है प्लॉट का, is included to locate the area belonging to any building, showing all the details of interior together with surrounding. This plan should be prepared before constructing the house and should represent the following information. साइट हमने सेलेक्ट करी और जो प्लान हम बनाने वाले हैं, जो बिल्डिंग प्लॉट है, जो साइट प्लान है या फिर जो प्लॉट प्लान है, उसमें हमें जो लेआउट है, जो बिल्डिंग प्लान है, वो हमें ड्रॉ करना चाहिए पहले, कंस्ट्रक्शन से पहले, पूरी डिज़ाइनिंग से पहले, और उसको आसपास के एरिया से मैच करके देखना चाहिए, आसपास के एरिया से कंपेटिबिलिटी देखनी चाहिए। तो देखो वो जो प्लॉट एरिया जब बना रहे हैं, जो हम प्लॉट प्लान जो बना रहे हैं, वो क्या इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करना चाहिए वो हम देख रहे हैं। द बाउंड्री ऑफ द प्लॉट, शेप ऑफ द साइट एंड एक्सटीरियर हाउस डायमेंशन। ओके, बाउंड्री ऑफ प्लॉट कैसी होगी, शेप ऑफ द साइट, और जो एक्सटीरियर हाउस डायमेंशन है वो कैसे होने वाली है। सेटबैक लाइन एट द फ्रंट, बैक एंड साइड्स। सेटबैक लाइन देके उसमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कितनी सेटबैक लाइन दिखेगी। एनी परमानेंट बाउंड्रीज और मार्क्स एग्जिस्टिंग शुड बी इंडिकेटेड ऑन द प्लान। कोई वहाँ पर आसपास कोई बड़ा मार्क है, मार्क मतलब कोई लैंडमार्क जैसे, तो वो भी एग्जिस्टिंग है, अगर है तो वो इंडिकेट होना चाहिए प्लान में। नेम्स एंड विड्थ ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रीट्स एंड रोड्स, वेदर ऑफ कॉन्क्रीट, एस्पाल्ट एक्सेट्रा। रोड की पूरी, मतलब आसपास का जो भी सारा एरिया है उसकी पूरी डिटेल होनी चाहिए, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सके सारी चीज़ें और पूरा नॉलेज ले सके प्लॉट के बारे में, पूरे एरिया के बारे में। ग्रेड एलिवेशन एट कॉर्नर्स ऑफ द प्लॉट, एट कॉर्नर्स ऑफ हाउस शुड बी इंडिकेटेड बाय द मीन्स ऑफ द कंट्रोल लाइन्स। साइज एंड लोकेशन ऑफ गेराज इफ डिटेच्ड। नंबर ऑफ फ्लोर एंड ब्लॉक इफ एनी, नेम्स ऑफ एडजॉइनिंग प्रॉपर्टीज़, आसपास की प्रॉपर्टीज़ का भी नंबर और नेम्स होना चाहिए। डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड्स एंड नॉर्थ लाइन, नॉर्थ डायरेक्शन किधर है और विंड्स किधर प्रिवेल हो रही है, ये भी होना चाहिए। विड्थ जो है, विंड जो है वो पर्टिकुलर लोकेशन के हिसाब से वेरी करती है, अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग विंड चलती है, अलग अलग डायरेक्शन में विंड होती है। फुटपाथ इफ एनी, विड्थ एंड काइंड्स ऑफ फुटपाथ। जोनिंग एंड बिल्डिंग रेस्ट्रिक्शन विच में अफेक्ट द साइट। जोन किस जोन में आता है हमारा, जो जिस जगह हम प्लॉट ले रहे हैं या फिर जिस जगह हम बिल्डिंग बना रहे हैं। साइज एंड लोकेशन ऑफ डिटेल्स ऑफ गैस लाइन, गैस लाइन की साइज, लोकेशन। अंडरग्राउंड ड्रेनेज, वाटर मेन्स, मैन होल्स, वेंटिलेटिंग पाइप्स एक्सेट्रा शुड बी इंडिकेटेड। एंड द लास्ट, लोकेशन ऑफ फायर हाइड्रेंट शुड बी मार्क्ड। फायर हाइड्रेंट शुड बी मार्क्ड, ये आपने नहीं देखे होंगे। फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, मतलब जहाँ से जब कभी आग वाग लग जाती है तो फायर हाइड्रेंट लगाए जाते हैं, उससे हम जल्दी से जल्दी आग को बुझा सकें। ओके, सो दीज आर दी सम प्रिंसिपल्स एंड फैक्टर्स फॉर द साइट सिलेक्शन एंड द साइट प्लान कैसा होना चाहिए जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन हो। आई होप आपको समझ में आया हो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।